Good evening. Good evening, everyone. Please join first. Am I visible? Hope I'm visible. I'm audible too. Where are the others? Is it clear now? Is it clear now? I'm clearly audible, I hope. Turn on your webcams. Where is Akshay, Vansh, Kavya, Shireen? Where are you people? Shireen, Akshay, Kavya. Where you people are? Join first. Akshay and Shireen. Akshay Sharma and Shireen. Where you two are? Vaishnav Tomar. Where is Vaishnav Tomar? Vansh Sharma. Chalo, let's start. Who will tell me from which particular form we need to start? You know that this Sunday you are having test. You'll be having 20 questions based on your tense only. Okay, basis of tenses that you have learned till date. Whatever you have learned, on the basis of that, question paper has been set, and you'll have to take that test. Okay.
Where is this Vansh Sharma and Shireen? You people are attending the class or not? Keep your webcams on. Chalo, who will tell me what is the last form that we did, from which one we need to start today? कहाँ से शुरू करेंगे हम लोग? Perfect से, I think. From perfect we need to start. Okay. So when do we use the term perfect? When do we use the term perfect? Answer fast. Reply fast. When do we use the word perfect? When do we use the word perfect? Reply fast. Very good, Vansh. Correct answer. What about the others? Only once has given the correct answer. सिर्फ once ने सही आंसर दिया. बाकी लोगों का क्या हुआ? Reply. When can we use the word perfect for an action? When can we use the word perfect for an action? किसी एक्शन के लिए हम परफेक्ट कब यूज कर सकते हैं? वंश ने सही जवाब दिया. बाकी लोग? What about the others? You can listen my voice, I hope. काव्य करे, मितुल करे, the others. Mitul, what you say is present perfect. I'm asking that when we can use the word perfect for any action. The right answer is when it is completed. I'm not talking about the quality of the completion of that particular action, but the action is completed or done. Until and unless the action completed, finished, over, you cannot use the word perfect. Clear? This line is known as now line, the imaginary one or the present one. Present tense, we consider this is our present tense, this is our past tense, and this is our future tense. So first you will talk about present perfect. Present perfect क्या होता है? कि कोई भी एक काम जो शुरू हुआ था प्रेजेंट से पहले, बिफोर द प्रेजेंट लाइन, एंड इट एंडेड बिफोर प्रेजेंट. प्रेजेंट से ठीक पहले, नाउ से ठीक पहले ये खत्म हो गया है, ओवर हो गया, इज फिनिश्ड. टू एक्सप्रेस this sort of situation, you need to use present perfect tense. Subject plus has a plus VC plus object. जैसे कि मानो इससे पहले आप लोगों को सोशल साइंस क्लास था, आप लोग तो आप क्या लिखोगे? I have attended social science class. I have attended social science class. क्या मतलब होता है कि अभी जो नाउ है इससे पहले सोशल साइंस क्लास खत्म हो चुका है. अगर बहुत पहले वाली बात हो जाएगी तो वी विल यूज सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट. ठीक है? अगर बहुत पहले की बात नहीं है, थोड़ी देर पहले की कोई बात हम लोग कर रहे हैं, पर इट हैज टू बी कंप्लीटेड, ये खत्म हो जाना जरूरी है, ओवर हो जाना जरूरी, देन वी नीड टू यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. आप बोलोगे आई हैव अटेंडेड सोशल साइंस क्लास. ठीक है? प्रेजेंट परफेक्ट क्लियर? नो वीडियो टुडे? नो वीडियो टुडे? Could you see me or not? आप मुझे देख पा रहे कि नहीं देख पा रहे? बेटा आप मुझे देख पा रहे कि नहीं देख पा रहे?
tell me, am I visible or not? Someone wrote that I'm not visible. Okay. Okay. So present perfect. Next, for future perfect, you cannot use this term for any action that will take place in the future. क्यों? इंसान के लिए पॉसिबल है क्या कि फ्यूचर में एक काम कंप्लीट होगा, फिनिश्ड होगा? ये कोई बता सकता है क्या? Is it possible? Is it possible to put this tag perfect for any action that is going to take place in the future? Future में होने वाली कोई action के लिए आप perfect ये term use कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं. And this is the reason in real life we don't use future perfect tense as well as future perfect continuous tense in English. English में हम लोग real life situation को express करने के लिए फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते ही नहीं है. ठीक है, कंडीशनल्स में यूज है. वुड हैव बीन करके हम लोग यूज करते हैं. फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल. कंडीशनल लोगों के सिलेबस में है नहीं तो उसमें हम जाएंगे नहीं. पर जब कंडीशनल्स होते हैं कि अगर कुछ ऐसा होता फिर वो ऐसा होता, एक के सापेक्ष में दूसरा चीज होंगे, रेस्पेक्टिव जो चीजें हम लोग बताते हैं, तो कंडीशनल्स में हम लोग करते हैं, कंपेयर करेंगे. पर रियल लाइफ सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की यूज नहीं होती. क्यों नहीं होती? बिकॉज यू कैन नॉट गेट दिस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन इन रियल लाइफ कि फ्यूचर में कोई एक, बिकॉज यू अंडरस्टूड, यू लर्न दैट द वर्ड परफेक्ट, द टेंस परफेक्ट कैन बी यूज्ड फॉर एन एक्शन which is over till that time. उस समय तक वो completed है, उतना ही पोर्शन, जितना पोर्शन कंप्लीटेड है उतना पोर्शन कंप्लीटेड है या फिनिश्ड है. फ्यूचर में आप बता ही नहीं सकते हैं कि वो काम ओवर होगा या उतना तक कंप्लीटली होगा, एकदम पूरा होगा, पता ही नहीं सकते फ्यूचर के लिए. सो इट इज नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ. ओके बेटा, आई टोल्ड यू नंबर ऑफ टाइम्स टू टर्न योर कैमरास ऑन. Someone has a problem and I got to know that that particular child is having a problem. What about others? You want me to remove you people? You want me to remove you people? I may remove you people, as simple as that, because you are not attending the class. If you will watch the video afterwards in YouTube, then why to be here in this live class? You're supposed not to be here in this live class. As simple as what? If you are attending the class properly and with honesty, you are attending the class, then what is your problem to keep your camera turned on? What is your problem? You tell me. You're supposed not to have any problem. Perhaps you are doing something else or sleeping or I don't know what, and this is the reason you don't want to keep your cameras on, so that your visual, I can see that yes, you are not attending the class. And what I'm doing here, we need more than 100% attention, you know, until and unless, because these are certain things that you cannot learn from book or notebook or by anything else. The concept should be clear. You should have proper concept for this. If someone is having a network issue, that I do understand, but purposely you people are switching it off. That is the thing I'm talking about. Leave it. Let's come to the, so present perfect you understood, past perfect, future perfect you understood. Now come to the past perfect. लास्ट क्लास में हमने पास्ट परफेक्ट के बारे में बात किया था क्या? लास्ट क्लास में पास्ट परफेक्ट आपको समझाया था क्या मैंने? ये सब नो, लास्ट क्लास में हमने पास्ट परफेक्ट आपको बताया था कि नहीं बताया था? प्लीज रिप्लाई. लास्ट क्लास में पास्ट परफेक्ट मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था? नहीं बताया था. ओके चलो, past perfect, first you guess. I'm giving you a chance to guess in which particular situation we use past perfect tense. Past perfect tense हम लोग कौन से सिचुएशन में यूज कर सकते हैं? आप एक बार गेस करो, आप मुझे बताओ आपके सेंस क्या बोल रहे हैं.
आपको ये समझ में आ गया परफेक्ट कहाँ पे यूज होता है। तो पास्ट परफेक्ट हम लोग किन कौन से सिचुएशन पे यूज करेंगे पहले आप बताइए, देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। यू टेल मी। कौन बताएगा? यू जस्ट ट्राई, नो प्रॉब्लम इफ इट इज रॉन्ग, डजंट मैटर इफ इट इज रॉन्ग, until and unless you will try you can never reach to the correct one. Okay, number of attempts are required to reach to the correct one. You try when the action has already completed. बेटा when the action has already completed it is present perfect ना? जब वो एक्शन कंप्लीट हो गया, आपने सोशल साइंस क्लास कर लिया है ना, दैट मींस व्हाट, वो प्रेजेंट परफेक्ट में हो गया। पास्ट परफेक्ट हम कब यूज करेंगे, कौन सी चीजों में हम पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे? अब थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए और मुझे बताइए। कोई काम पास्ट में हुआ था, पास्ट में खत्म हो गया, सिंपल पास्ट। कोई काम पास्ट में हुआ था और पास्ट में खत्म हो गया, ठीक है। अब मानो कि आपने आज हो गया 27, आपने 15 को चिप्स खाया था, आपने 15 को पार्टी करी थी और चिप्स खाया था, हो गया। we had chips and cold drinks करके जो भी डेट है ऑन दिस डे इन अ पार्टी, तो सिंपल पास्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, पास्ट परफेक्ट क्यों यूज करोगे आप? Sir, I think action which is already completed before the other had started. Mitul is correct. Now, Kavya is correct. नहीं, निखिल, yes निखिल, tell me निखिल कहाँ पे है? Yes निखिल, tell, बताओ। सर जो काम पास्ट में स्टार्ट हुआ है और सर अभी तक चल रहा है सर, हमें ये नहीं पता है कि वो पास्ट में कब स्टार्ट हुआ था सर, उसे पास्ट परफेक्ट कहा जाता है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। प्रेजेंट आप जो बोल रहे हो ना, उसके आधे में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऐसे होते हैं, जब पहले शुरू हुआ था हमें पता है कब शुरू हुआ है, आगे कब तक चलेगा वो हमें पता नहीं होता, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में आते। पास्ट परफेक्ट किसी और चीज में होता है, किसमें होता है? Who will tell me? Do try, do try. कोई ट्राई करो, किसी एक ने सही आंसर दे भी दिया था। Someone has given me the correct answer already. Anyone wanna try? कोई और ट्राई करना चाहोगे? किसी को ट्राई करना है? किसी को ट्राई करना है? नहीं करना है? काव्य इज करेक्ट, आई टोल्ड, काव्य ने सही बोला है। Once the question is when we use past perfect tense, when we use past perfect tense हम कब यूज करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस हम कब यूज करते हैं? चलो मैं बता देता हूं। We never use past perfect tense for any single action. If it is single action, then we only use simple past or past indefinite. अगर पास्ट में कोई सिंगल एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तब हम लोग सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट ही यूज करते हैं, सिंपल पास्ट यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। पर जब हम लोग पास्ट में कोई दो एक्शन की बात करते हैं, ठीक है, एक पहले हुआ एक बाद में हुआ, अभी अभी हम लोगों ने क्या बात करते कि आप चिप्स खा रहे थे, ठीक है, अगर आप ऐसे बोलेंगे कि मेरे आने से पहले चिप्स खत्म हो गया, मेरे आने से पहले चिप्स खत्म हो गया, मतलब आपका आना एक एक्शन, चिप्स का खत्म होना दो एक्शन, एक्शन नंबर 2, तो फिर आपके आने से पहले चिप्स का पैकेट खत्म हो गया, तो इसमें क्या लगेंगे? पास्ट परफेक्ट लगेंगे। कौन सा चीज पहले हुआ है? चिप्स का पैकेट पहले। आपको चिप्स का पैकेट से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे लग रहा है कि चिप्स सुन के आप लोगों को एक सिंपल सा एग्जांपल आई थिंक हमने किया था, चलो नो इशू।
हम डॉक्टर वाले एग्जाम्पल से इस चीज को क्लियरली समझेंगे। एक डॉक्टर है और एक पेशेंट है, ठीक। अब पेशेंट जो है ये बीमार है, ठीक है, और बीमारी के कारण इसका डेथ हो गया, ठीक है, और ये बीमार था इसीलिए डॉक्टर को बुलाया गया और डॉक्टर आ पहुंचा। डॉक्टर का अराइवल और पेशेंट का डेथ, ये दो एक्शन है हमारे पास, ठीक। निखिल करे, मितुल करे, दो एक्शन है हमारे पास, एक डॉक्टर का अराइवल और एक पेशेंट का डेथ। अगर ऐसा है कि पेशेंट की तबीयत खराब हुई, डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर आने से पहले पेशेंट का डेथ हो गया, ठीक है, तो फिर पेशेंट का डेथ जो है ये नंबर 1 में हुआ और डॉक्टर उसके बाद में आया, तो कौन सा एक्शन पहले हुआ है? पेशेंट का डेथ। तो फिर हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अगर ये उल्टा कर दो कि डॉक्टर के आने के बाद, ये पहला केस था, दूसरे केस में डॉक्टर पहले आ गया और उसके बाद पेशेंट का डेथ हुआ, तो फिर क्या लिखेंगे? द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। यहाँ पे पहले क्या हुआ था? डॉक्टर का आना पहले हुआ था और पेशेंट का डेथ उसके बाद में हुआ। Am I clear? आपको आया समझ में? अगर नहीं आया, यू मे आस्क। आपको समझ में आया? बेटा सेकेंड वन, फॉर द फर्स्ट वन इट इज S plus and plus V3 plus object, for second one S plus V2 plus O। ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, क्लियर। जो भी एक्शन पहले हुआ है, जो नंबर 1 में है उसके साथ क्या लगेगा? पास्ट परफेक्ट लगेगा। जो नंबर 2 में है उसके साथ क्या लगेगा? सिंपल पास्ट लगेगा या पास्ट इंडेफिनिट लगेगा, ठीक है, क्लियर। क्लियर, किसी को कोई डाउट? चलो मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूं, ठीक है, मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूं, आप लोग एक लाइन सेंटेंस फॉर्म करोगे बाय यूजिंग द टेंस फॉर्म पास्ट परफेक्ट, ठीक है। आपको वो आपको कहाँ जाना है? आपको दिल्ली जाना है, ठीक है, तो फिर आप जम्मू स्टेशन में पहुंचे, ये मैं लॉकडाउन की पहले की बात कर रहा हूँ। आपको दिल्ली जाना है तो फिर आप दिल्ली का जम्मू स्टेशन में पहुंचे, ठीक है, आप स्टेशन में पहुंचे और केस नंबर 1 में क्या होगा? आप स्टेशन में बाद में पहुंचे और ट्रेन पहले छोड़ दी। आपके स्टेशन में पहुंचने से पहले ट्रेन छूट गई, आपके स्टेशन में पहुंचने से पहले ट्रेन छूट गई, राइट इट। अब मुझे इसका सेंटेंस बताइए, व्हाट शुड बी द सेंटेंस? राइट इट फास्ट, जल्दी जल्दी। मृदुल, गिव मी द आंसर, आंसर दो। What should be the answer? Shirin, correct. Very good.
नो निखिल, थोड़ा सा इधर उधर है, बस शिरीन का करेक्ट है। नहीं मितुल, नहीं नहीं। मृदुल, एराई कैसे होगा? निखिल करेक्ट, निखिल सिंपल करेक्ट, करेक्ट आंसर। करेक्ट प्रणव, पर 2 बार स्टेशन लिखने की जरूरत नहीं है, ये रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है, एक बार स्टेशन लिखोगे करेक्ट है। वंस मिस ट्रेन की बात कहां से आ गई? आधा लोग करेक्ट आंसर दिए हैं, आधा लोगों ने नहीं दिया है। हमने क्या बोला कि स्टेशन में आप बाद में पहुंचे, ट्रेन पहले छोड़ दी है। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन, द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड। मेरा पहुंचना बाद में हुआ था, आपके स्टेशन में पहुंचना सेकंड है। पहला क्या है कि ट्रेन पहले छूट गई। अब इसको हम वाइस वर्सा कर देते हैं। अब आप स्टेशन में पहले पहुंच गए, अब आप स्टेशन में पहले पहुंच गए और ट्रेन बाद में छूटी है। पहले आप स्टेशन में पहुंच गए, उसके बाद ट्रेन छूटी है। नाउ राइट डाउन। नो इशू बेटा, नो इशू। वंस यू अंडरस्टूड ना, अब आपको समझ में आ गया ना? वंश आपको आप समझ में आ गया ना? गुड। नहीं प्रणव, नो नो, आप पहले पहुंचे स्टेशन, आपका पहुंचना पहले हुआ। आपका पहुंचना पहले हुआ तो फिर किस में लगेगा? ट्रेन बाद में छूटी है। या बेटा मैं समझाता हूं, पहले देखते हैं कौन कौन ट्राई करते हैं। शिरीन एंड के बदले में जस्ट बिफोर कर दोगे, एंड ना करके एंड के जगह पे बिफोर हो जाएगा। अंडरस्टूड? या नो करेक्ट, शिरीन करेक्ट। बाकी लोगों से आंसर चाहिए मुझे, व्हाट अबाउट द अदर्स? बस एक बच्चे ने आंसर दिया है। मृदुल मैं एक्सप्लेन करता हूं ना, लेट्स सी कि कितने लोग आंसर दे पाते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिर जरूर एक्सप्लेन करेंगे। और कोई बता सकते हैं? बस एक बच्चे ने आंसर दिया है, सिर्फ शिरीन ने आंसर दिया है। देखो मैं फिर से आपको, जिन लोग सबके लिए सबसे आंसर चाहिए, मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूँ। अगर पास्ट में हमारे पास 2 एक्शन है, ठीक है, यहाँ पे 2 एक्शन कौन कौन से है? एक स्टेशन में पहुंचना, आपके आप स्टेशन में पहुंचे, पहले आप स्टेशन में पहुंचे और उसके बाद स्टेशन में पहुंचने के बाद ट्रेन जो है स्टेशन से छूटी है, ठीक है। तो फिर पहले एक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं? पहले एक्शन के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं और दूसरे एक्शन के लिए हम सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे कौन सा है? आपका स्टेशन में पहुंचना पहले हुआ है, तो इस सेंटेंस में आपको क्या यूज करना है? मतलब इस पर्टिकुलर क्लॉज में आपको क्या यूज करना है? पास्ट परफेक्ट। और ये वाले क्लॉज में आपको क्या यूज करना है? पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। अब यूज कीजिए। मृदुल समझ में आ गया? मृदुल, who is this Shikhar? Peshin? Shikhar? Are you present in the class? Krish?
Ravneesh, Krish and Shikhar. Where you people are? Very good. One's correct answer. One's correct answer. Very good. Ravneesh, Krish and Shikhar, you are not present in the class. Krish, you are present. Turn your camera on. आप सो रहे हो या क्लास कर रहे हो? So perfect present perfect sorry past perfect tense clear. Past perfect tense सबको समझ में आ गया? Past perfect tense सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? You know how to let me know कि हो गया कि नहीं. सिंपली आपको ये करना है. अब बस थम्स अप करोगे. I understand कि yes आप लोगों को समझ में आ गया. टू वाला समझाइए. निखिल कौन सा चीज टू वाला समझाइए. निखिल व्हाट आर यू आस्किंग? निखिल बेटा क्या पूछ रहे हो? सर सेकंड कंडीशन. सेकंड कंडीशन सर जो आपने सर जिसमें ट्रेन बाद में गई हम पहले आए थे सर वो वाली कंडीशन नहीं समझ आए. ओके ओके ओके. ट्रेन अगर बाद में जाते हैं और आप पहले आते हो. अभी जो आंसर के आई हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन लेफ्ट. आई हैड रीच्ड. क्योंकि पहले कौन आया? आप स्टेशन में पहले आए हो ना. तो फिर आई हैड रीच्ड पास्ट परफेक्ट जो है वो किसके साथ लगेगा? आपके स्टेशन में पहुंचने के साथ लगेगा. आई हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन लेफ्ट. I had reached before the train left the station. समझ में आ गया? निखिल understood? निखिल समझ में आ गया? Good. Anyone else? Anyone else who has a doubt? किसी और को कोई भी डाउट है? नहीं है? तो फिर हम लोग अब परफेक्ट कंटिन्यूअस में चलेंगे. Perfect continuous. Perfect continuous. What is the tense form for perfect continuous? Am I connected? Am I connected? Better please reply. Am I connected or not? Okay. Perfect continuous. What is the construction for perfect continuous? Perfect continuous का construction बताइए जल्दी से. First. What is the construction for perfect continuous? Perfect continuous की construction क्या है? जल्दी बताओ. Tell me fast. What is the construction of perfect continuous? जल्दी. अब पूरी कंस्ट्रक्शन बताओ. प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की नहीं पूछ रहा हूं मैं. जो बेस कंस्ट्रक्शन होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस का वो क्या है? मृदुला पास्ट का बता रहे हो. पास्ट का नहीं चाहिए हमें. बेस कंस्ट्रक्शन चाहिए परफेक्ट कंटिन्यूअस का. जल्दी. बीन डूइंग. शिरीन आप पहले क्लास में थे? Were you there in our previous classes? For that only you missed the construction part. आप construction part miss कर गए.
चलो मैं एक बार सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस वंस करेक्ट कैसे आते हैं मैं आपको एक बार बता देता हूं, जल्दी से एक रिकैप भी हो जाएगा, ठीक है ना, उसके बाद मैं इसको समझाऊंगा। Manu, what is the construction for perfect? Is subject plus have verb plus V3 plus object. What is the construction for continuous? Subject plus be plus V plus ing plus object. And the rules, you know, that to write anything in perfect, you need to use any form of have verb. To write any sentence in continuous, you need to use any form of be verb. And if a verb is preceded with any form of have verb, it changes into its third form. If a verb is preceded with any form of be verb, ing to be added after the main verb. These rules you know already, है ना, ये चीज आपको मैं नोट करा चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो फिर इस दोनों को हम अगर जोड़ेंगे तो फिर हमारे पास क्या आएगा, परफेक्ट कंटीन्यूअस आएगा। उसकी कंस्ट्रक्शन करने के लिए सब्जेक्ट पहले आएंगे, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, अब हैव के बाद ये बी ऐसे हो सकता है क्या? हैव के बाद क्या रूल क्या है, परफेक्ट का रूल क्या बताया जाता है कि अगर कोई भी वर्ब के आगे हैव वर्ब का कोई भी फॉर्म लगता है तो ये क्या होता है, इसके थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है। यस और नो? तो फिर बी का थर्ड फॉर्म क्या है, बीन है। उसके बाद क्या आता है, ये थर्ड फॉर्म हो गया, इसके बाद क्या आता है, वर्ब। अब एक रूल और है क्या, कि कोई भी वर्ब के आगे अगर बी वर्ब का कोई भी फॉर्म लगता है तो वर्ब के पीछे क्या लगता है, आईएनजी, है ना, और उसके बाद, ठीक है। सो व्हाट विल बी द कंस्ट्रक्शन, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे व्हाट इज द, व्हिच वन इज द फाइनाइट वर्ब, इसमें फाइनाइट वर्ब कौन सा है, इसमें फाइनाइट वर्ब कौन सा है, जल्दी बताओ। Which one is the finite verb? Because we are having 1, 2 and 3. We are having 3 verbs in this particular sentence. है ना, इस सेंटेंस में हमारे पास 3 verbs हैं। प्रणव is correct, Krish correct। देखो फिर से सबके कैमरा बंद हो गए। दो लोग बस करेक्ट जवाब दिए, प्रणव और क्रिश, बाकी लोगों का क्या हुआ, which one is finite and why, which one is finite and why, once been finite है, wrong, once wrong। निखिल you wrote 2 मतलब b कैसे होगा, how to find out finite verb in a sentence, I told you, I have given you the trick, मैंने आपको ट्रिक दिया था, याद करो कि फाइनाइट वर्ब कैसे पता करते हैं। अंश करे, फाइनाइट वर्ब कैसे पता करते हैं, व्हाट वाज द ट्रिक, am I connected, am I connected? Shirin correct, no beta, not after auxiliary, Kavya is correct, Kavya correct, all your cameras are off, I'm not able to understand whether someone is attending my class or not, whether you people are attending the class or not, I'm not able to understand, only Shirin is visible, Pranav now, what about the others, Mitul, Vanshita, it seems you know I'm teaching the walls, दीवारों को पढ़ा रहा हूं मैं आराम से, it's not done, but a trick मैं repeat तो कर सकता हूं बिल्कुल, पर मैं क्यों करूं, I can repeat but why should I, मैं repeat क्यों करूं, बताओ, the verb
that comes immediate after the subject is always finite in nature. The verb that comes immediate after the subject, मैंने आपको लिखवाया था ये. The verb that comes immediate after the subject is always finite in nature. तो यहाँ पे subject के बाद कौन आ रहा है? Have. तो ये आपका finite है. What are the forms of have verb in all the three tenses? What are the forms of have verb in all the three tenses? Have verb का form क्या क्या होता है तीनों tenses में? क्यों absent है? मैंने बोला था आपको absent होने के लिए. What are the forms of have verb in all three tenses? जल्दी बताओ. जल्दी जल्दी. जल्दी बताओ. Has, have, had. कौन से टेंस में has, have और had तीनों फॉर्म आता है? प्रेजेंट has, have करेक्ट. प्रणव करेक्ट. वैष्णव has, have, had तीनों आते हैं. पास्ट में had is करेक्ट. प्रेजेंट फ्यूचर पास्ट नहीं बेटा गलत. फ्यूचर में have नहीं होता है. फ्यूचर shall have will have. वेरी गुड. प्रणव ने करेक्ट आंसर दिया. सिर्फ प्रणव ने करेक्ट आंसर दिया. व्हाट अबाउट द अदर्स? बाकी लोग काव्य have, has, past, had. yes काव्य करेक्ट. फ्यूचर में क्या होता है? फ्यूचर में क्या होता है? जल्दी जल्दी. In present it is has, have, in past it is had, and in future it is shall have, will have. In present it is has, have, in past it is had, and in future shall have, will have. ठीक है? तो when it will form the sentence in present tense, the construction will be subject plus has, have plus be plus verb plus ing plus subject. In past, subject plus had plus be plus verb plus ing plus subject, and in future subject plus shall have or will have plus be plus verb plus ing plus object. ठीक है? ये होगा आपका कंस्ट्रक्शन. Shirin, you got? Shirin, you got it? समझ में आ गया? Good. So when do we use present perfect continuous tense? If how many of you are not from Jammu? कितने लोग यहाँ पे जम्मू से नहीं हैं? Who all are not from Jammu? वंशिता जम्मू से नहीं हो. How many years you are living here? आप कितने सालों से जम्मू में हो? वंशिता कितने दिनों से जम्मू में हो? नहीं कौन नहीं है. From 2014, okay. From 2014, Vanshita is living in Jammu. So try to understand. Okay, in the year 2014, Vanshita came here, and this is 2020. She is living here only, and she will live for some more time. And she herself doesn't know how long she will be living here in Jammu. अगर आपके लिए ऐसा सिचुएशन है, अगर आपके लिए ऐसा सिचुएशन है, देन अच्छा फ्रॉम 2016 चलो सेम चीजें हैं कि 14 इयर्स हम मान लेते हैं कि इफ द सिचुएशन समथिंग दैट द वर्क स्टार्टेड इन द पास्ट, ओके, नॉट नियर वन, काफी पहले ये शुरू हुआ है, अब तक परफेक्टली वो चली है, अब तक की जो जर्नी थी उस पर्टिकुलर एक्शन की, इट वाज परफेक्ट, एंड आगे भी कुछ समय तक वो चलने वाला है, और कितने समय तक चलने वाला है, दैट इज नॉट स्पेसिफाइड. ओके, दैट इज नॉट स्पेसिफाइड. इफ इट हैव बीन स्पेसिफाइड तो फिर क्या हो जाएगा, वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो जाएंगे. प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या होता है कि कोई भी वर्ड उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता होता है, उसकी पैसेज हमें पता होता है, उसकी टेंटेटिव एंडिंग टाइम भी हमें पता होता है. पर परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या होता है, थोड़ी पहले से शुरू होती है, चल रही है, और आगे भी कुछ समय और चलेंगे. ठीक है, कब खत्म होने वाला है उसका कोई क्लियर आइडिया जब नहीं होता है, देन वी यूज
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम इसमें क्या लगेंगे, वंशिता हैज बीन लिविंग इन जम्मू। यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है सीन्स ऑफ फॉर। When do we use since and when do we use for? कौन बताएगा मुझे since और for कब यूज करते हैं हम? since और for कब यूज करते हैं? जल्दी बताओ। When do we use since and when do we use for? Tell me fast. जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। since for the long period। नहीं बेटा क्रिश, ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली निखिल थोड़ा करेक्ट है। वंशिता दोनों के लिए सीन्स ऑफ फॉर दोनों टाइम के लिए यूज होता है। सिंस मैं आपको थोड़ा सा आप लोगों की आइडिया क्लियर नहीं हो पा रहा है। सिंस हम लोग उस पॉइंट ऑफ टाइम, उस स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना, उस पॉइंट ऑफ टाइम को अगर हमको बताना है सिंस, जैसे ये जो चीजें हैं इसमें 2014 टू 20 नियर अबाउट 7 इयर्स, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, वंशिता हैज बीन लिविंग इन जम्मू सिंस 2014। सिंस 2014 के बिगनिंग जो पॉइंट ऑफ टाइम है वो हमें अगर बताना है सिंस, और फॉर लास्ट 7 इयर्स, फॉर 7 इयर्स। अगर आपको पैसेज ऑफ टाइम आपको अगर बताना है देन इट इज फॉर 7 इयर्स एंड सिंस 2014। क्लियर? कव्य करेक्ट, कव्य करेक्ट, समझ में आ गया? देखो सारे लोग गायब हो गए। अब एक आप सच सच बताइए, आप लोग सो रहे हैं क्या? क्लास के बीच में सो जा रहे हैं क्या? कि कैमरे चालू होगा तो सर को पता चल जाएगा कि देख लेंगे कि हम तो सो रहे हैं, इसीलिए हम बंद कर दे रहे हैं। ये पक्का सो रहे हैं। ये कौन था? ये वंशिता पांडिता सो रही है। ये देखो, ये कौन है? निखिल, निखिल, निखिल सिब्बल, ये देखो सो रहा है ये लड़का। हाँ क्या है? चलो, सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्लियर? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्लियर? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्लियर और नॉट? टेल मी। गुड, सबको क्लियर है? गुड। नाउ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता ही नहीं है। I told you already that the perfect, the word perfect, the term perfect cannot be tagged with anything in the future. So there is no use of, means practical use of future perfect or future perfect continuous. ठीक है? तो past perfect continuous, you know what is past perfect and you know what is continuous. When do we use continuous? You know that, and what is past perfect? That also you know. अब ये दोनों को यूज करके थोड़ा सा आप अपना ब्रेन लगाओ, देखते हैं आप लोग फ्यूचर कितने लोग मेडिकल वाले हो, कितने लोग नॉन मेडिकल वाले हो इनमें से। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू ऑप्ट मेडिकल इन द फ्यूचर? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू ऑप्ट नॉन मेडिकल इन द फ्यूचर? कितने लोगों को मेडिकल लेना है? कौन कौन मेडिकल ले रहे हो? जस्ट टाइप मेडिकल, काव्या मेडिकल, प्रणव नॉन मेडिकल, वंशिता मेडिकल, शिरीन नॉन मेडिकल, मिथुन नॉट डिसाइडेड yet? अच्छा, when will you decide? कृष्ण नॉन मेडिकल। चलो, it has nothing to do, मैंने बस ऐसी जानकारी के लिए पूछ लिया। अब थोड़ा सा आप अपना ब्रेन यूज करो, ठीक है? परफेक्ट कब होता है आपको पता चल गया, पास्ट परफेक्ट कब होता है आपको पता चल गया, और कंटिन्यूअस when you are talking about the passage of time of that particular action, ठीक है? अब ये दोनों को यूज करके you tell me
ठीक है, कौन मुझे बताना चाहता है? मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। यू टेल मी के कब और कौन से सिचुएशन में यू नीड टू यूज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कब यूज करेंगे? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। Yeah, I understand, Nikhil. I understand. PCMB you were talking about. ना, I'm a student of PCMB. मेरी 11 12 में क्लास 2 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी चारों थी, ठीक है ना? So I understand. So that something started in the past and is continuing in the present time. नहीं बेटा, अगर वो होता तो that is simply present perfect continuous काव्य। अगर ऐसा होता तो उसको present perfect continuous बोलते हैं। All the cameras are off. All the cameras are off. Turn on your cameras. मितुल, निखिल, वंशिता, श्रीन, शिखर, वैष्णव, प्रणव, काव्य, क्रिश, दिस वंश शर्मा। ये तो पक्का सो रहा है। वंश पक्का सो रहा है, ये कभी कभार नींद से उठते हैं जैसे ही नाम लेते हैं। This is your time to show that something started in the past and continues up until another time in the past. Shirin is correct. Very good. Shirin correct. तो your एक बच्चे ने बस आंसर दिया है। No one, देखो मानो आप लोग लास्ट वीक में आप इंग्लिश की क्लास कर रहे थे और आप क्लास करते करते अचानक क्या हुआ, आपकी मम्मी जो है आपको कुछ खाने के लिए दी, ठीक है? ऐसा सिचुएशन है कि इंग्लिश की क्लास शुरू हो गई थी और वो चल रहा था, कि द क्लास स्टार्टेड एट 6 से 7 होता है, 6 o'clock आपके वो क्लास चालू हुआ, 6 बजे इवनिंग को शुरू हुआ द क्लास स्टार्ट्स और वो चल रहा था। एट 6:30 क्या हुआ, आपकी मम्मी आई और आपको स्नैक्स दिए कुछ, और आपको पता है 7 बजे जाके वो क्लास खत्म हो जाएगी। तो फिर आप कैसे बोलोगे? आई हैड बीन अटेंडिंग my online English class. I had been attending my live English class when my mom gave me some snacks. I had been attending my online class when my mom gave me some snacks. For the देखो दो एक्शन है, एक आपकी ऑनलाइन क्लास अटेंड करना, वो क्लास शुरू हुआ था, वो क्लास चल रहा था और आगे जाके कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा। कंटिन्यूअस मतलब कब खत्म होगा आपको पता है? टेंटेटिव टाइम कंटिन्यूअस यही है ना। कंटिन्यूअस में क्या सीखे थे हम लोगों ने कि आगे जाके कब खत्म होगा वो आपको पता है, ठीक है? आपको पता है 7 बजे क्लास खत्म हो जाएगा, बीच में कोई एक टाइम पॉइंट पे आपकी मम्मी आके आपको स्नैक्स दिए और ये सारी चीजें जो है वो पास्ट में हो गया है। सो दिस शुड बी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई हैड बीन अटेंडिंग my online English class when my mom gave me some snacks. Is it clear? Clear है कि नहीं? या आई रिपीट, यही वाले एग्जांपल हम करते हैं कि 6 बजे से आप ऑनलाइन क्लास करने बैठे थे, 6 बजे से आप पढ़ाई कर रहे हो, 6:30 बजे आपकी मम्मी आई आपको कुछ स्नैक्स दिए। कब? ये हम पिछले संडे की बात कर रहे हैं, ठीक है? पिछले फ्राइडे की, पिछले संडे की जब क्लास हो रही थी तब की बात कर रहे हैं।
तो इसको आप कैसे लिखोगे? I had been attending my online class when my mom gave when my mom gave me some snacks. I had been attending the online class when my mom gave some snacks. आपके मॉम बाद में दिया है, आप क्लास पहले से शुरू किया है और वो क्लास चल रहा था, थोड़ी देर बाद जाके खत्म होने वाला था। क्लियर? गुड। बाकी लोग, बाकी बच्चे बताओ, सारे हो गए हमारे? एनी डाउट? नो डाउट? All are here only. Shikhar passing, where is Shikhar passing? Peshi. No, beta, this class is up to 7 only, 6 to 7. It's not up to 7:30. We are about to end the class. Good. Now you people tell me if you are having any doubt, because you giving the test on Sunday. Sunday आपको टेस्ट देना है. If anyone is having any doubt, you may ask me. आपको कोई भी डाउट है, you may ask me. जल्दी जल्दी. 20 questions should be there. Fill in the blanks based on tenses. Total marks 20 only. For English I am talking about, not about the other subjects. Anything else? No? Okay, thank you all. Thank you very much. Good night.